all the incarnation, they are coming different yugas, not same time. Because their duties is their Yuga Avatar. Yuga Avatar means the incarnation of Yuga. Yuga Avatar, they are coming to re-establish the Varnashram Dharma. Viva Bhagavad Gita, Krishna says, Paritrana sadhunam vinasaya cha duskritam. Then, Dharma samsthapanartha sambhavami yuge yuge. Dharma samsthapanartha, that means when the demons they contaminated the Varnashram Dharma. Here Dharma means which Dharma? Varnashram Dharma. When the demons they destroyed the Varnashram Dharma, and that time the Lord, He appears in this material world in the form of incarnation, Yuga Avatar. This is the duty of Yuga Avatar to re-establish the Varnashram Dharma. And such as given example, Nisinghadev, Nisingha Avatar. When Nisingha Avatar appeared, and when Hiranyakashipu, he destroyed all Varnashram Dharma and disturbed Prahlad Maharaj and others. Then Lord Nisinghadev, he appeared. In the same way, different times the incarnation of Lord Bhagavad Avatar, they are coming. This is the incoming in Sattva, Treta, Dwapar, Kali. But you try to understand, Krishna, who is the Supreme Personality of God, is saying Bhagavan Brajnanda, he does not come every yuga. When does he come? One day of Brahma and the end of Dwapar. This is the fix. When Brajnandan Samsundar will come, Brajnandan Samsundar comes, he is the Supreme Personality of Godhead, and when the 1000 Chaturjug rotation, the end of Dwapar Yug, end of Dwapar Yug, then Brajnandan Samsundar, he comes. Because every yuga or every kalpa, he does not come. Kalpa means origin kalpa, day of Brahma. One day of Brahma means one kalpa. Or one kalpa means one day of Brahma means 1000 Chaturjug. Sattva, Treta, Dwapar and Kali. That means every yuga he does not come. Brajnandan Samsung, in the same way Ramchandra also he does not come every Treta Yuga. Understand? Ramchandra also he comes in the end of Treta Yuga. And when the 1000 Chaturjug, then the end of Treta Yuga, then Ramchandra he comes. So who is coming in the Treta Yuga? Understand? And that time the Vishnu he comes. And that time also his name also Ram. The Krishna. Every Dwapar Yuga Krishna he does not come. So who comes? Who is coming? Vishnu comes. Vishnu comes, and that time his name is also Krishna. Krishna. Understand? His name is Krishna, but he is not the Brajendra Nandan. son of Nanda Maharaj. Many people, they don't know this philosophy. They think, oh, every yuga, Krishna comes. Every Dwapar Yuga, Krishna he comes. I said, this is not true. Gauriya Siddhanta, very minor, very suksma. Most of the Panditas will go, they will say, oh, Krishna. Yada yada hi Yada yada hi dharma. So that means every Dwapar Yuga he comes. No. Krishna he comes, this is true. But that Krishna or the son of Nanda Maharaj Krishna, not same. Do you understand?
So for this guy, sometimes people they confuse. When you are discussing this philosophy, people are confused. Just the Ramnamami I told, Holland, the Ramchandra, the son of Dasarath Maharaj, Ramachandra, actually he came in Dapar Yug. Which Dapar Yug? Not this Dapar Yug. Treta Yuga. Treta Yug. Ramchandra, he came in Treta Yug. Which Treta Yug? Not this Treta Yug. Not Treta Yuga, just passed. Through two Yugas. Ramchandra actually he came, कितना साल बताया था? 800 millions years before. 8 करोड़ साल पहले रामचंद्र आए थे. अतः कृष्ण आने के पहले कितने युग बदल गया, उसके बाद आया था, उसके पहले आया था. ये नहीं है ये रामचंद्र आया और इसके बाद कृष्ण आया. कृष्ण तो आया किंतु वो कृष्ण वर्णन संसंग नहीं, वो विष्णु तत्व है. ये समस्त जो है चैतन्य चैतामृत में सनातन शिक्षा में इसके अच्छी तरह से वर्णन किया गया. और हमारे श्रील रूप गोस्वामी पाद लघु भागवतामृत ग्रंथ में इसको भी सुंदर वर्णन किया गया. कौन अवतार कब आएगा? एक होता है अवतार और एक होता है अवतारी. अवतार माने इनकारनेशन और अवतार माने अवतारी मीन्स द सोर्स ऑफ all incarnation. कृष्ण क्या है? वो सर्व अवतारी का है. विशेष करके नृसिंह अवतार, रामचंद्र अवतार, कृष्ण, ये तीनों जो है एक विशेष वैशिष्ट कहा गया है. इससे हमारे लोग अवतार में इसे कहा गया है परावेश अवतार कहा जाए. परावतार, परा माने श्रेष्ठ, परावेश अवतार कहा जाए. नृसिंहदेव भी हर समय नहीं आते, कोई विशेष समय पर आता है. और भगवान की योग में की इच्छा से वो लीला उसी प्रकार समय ठीक आ जाता है. वही लीला होगी किंतु भगवान जो नृसिंहदेव उस समय आए और उसके पहले जो अब आएगा उसके नाम नृसिंह होने पर भी वो नृसिंह नहीं आएगा. इसके बहुत सूक्ष्म विचार है. सभी लोग सोचते हैं वही एक व्यक्ति है किंतु ऐसे नहीं है. कृष्ण भी आएगा और दापर युग में जो इनकारनेशन होगा उसके नाम कृष्ण है. किंतु वो कृष्ण कौन तत्व है? विष्णु तत्व है. वो चतुर्भुज धारण करने वाला. और ये जो ब्रह्मा जी के एक दिन यानी 1000 चतुर्युग के बाद से अंत में दापर युग में जो आते हैं कृष्ण, वो वृंदन सक्षम है. ये समस्त दिखाया गया क्योंकि चित जगत में अनंत वैकुंठ है, एक नहीं. कितना वैकुंठ है? अनंत अनंत अनलिमिटेड. वो आप चित्र में दिखाए ना, स्लाइड में दिखाएगा ना, अनंत वैकुंठ है. मत्स्य, कूर्म, नृसिंह, वराह आदि ये समस्त उनके धाम अलग अलग है. सब विष्णु तत्व है. उनके स्वरूप भी उसी प्रकार है. जब जिसके लीला की समय आ जाता है और लीला करने के लिए वो तब आता है, इसके कहा जाता है लीला अवतार कहा जाता है. इसलिए अवतार की कई प्रकार की अवतार कहा गया, जैसे लीला अवतार, सप्तावीस अवतार, गुना अवतार, ये समस्त अवतार के वर्णन है. ये गुना अवतार है. ब्रह्मा, शिव और विष्णु, इसे कहा जाता है गुना अवतार कहा जाता है. लीला अवतार, भगवान की ये लीलाएं की जो अवतार दी है, 24 लीला अवतार है. मैं 24 लीला अवतार ये सब आता है सीक्वेंस में आते हैं. कौन अवतार किस समय आएगा, कौन मनंतर में आएगा, ये सब पहले से क्या है? निर्धारित है. निर्धारित समझते हो? फिक्स है. फिक्स है. अब निर्धारित शब्द नहीं जानते. निर्धारित मैंने फिक्स है. कौन कब आएगा ये नहीं, क्योंकि लोग के भ्रम, आजकल लोगों के भ्रम हो जाता है ये भगवान आ जाए है.
भगवान नहीं आएगा वो। लोगों के जो जिसके भगवान कब आता है और एक जिसके ज्ञान नहीं है, तो जिसके तुझको भगवान कह के उसके पीछे दौड़ता रहता है। थोड़ा बहुत कुछ लोग वो दिखा देता है, क्या बोले, जादू, जादू चमत्कार दिखा देते हैं ना, क्या बोलते हैं, मैजिक, मैजिक दिखा देते हैं, तो लोग सोचते हैं ये भगवान है। आज समझ रिद्धि सिद्धि कुछ लोग प्राप्ति करके वो भी कर देते हैं, तो लोग उसके चलते वो भगवान है, किंतु ये नहीं है। इससे हमारे भक्ति विनोद ठाकुर के समय एक ये था, क्या बोले, जोगी था, है। वो स्वयं अपने को डिक्लार करने लगे, मैं स्वयं कृष्ण भगवान हूँ, मैं विष्णु हूँ, भगवान है। आज समझिए, वो इतना जो प्रभाव से लोगों को इतने प्रभावित कर दिया, हजारों लाखों लोग उसके पीछे दौड़ने लगे, सब उसको भगवान मानने लगे। आज समझ, भगवान उसे सब भगवान मानने लगे। यहाँ तक भी वो भी स्वयं कहने लगे, ये मैं स्वयं कृष्ण हूँ। जैसे कृष्ण द्वापर युग में रास किया था, मैं भी रास करूँगा, उसके नाम था क्या, विष किशन नाम था, जोगी का नाम। उस जोगी का नाम क्या था, विष किशन था। वो इतने महाजोगी था, तप आदि तपस्या आदि के द्वारा अनेक प्रकार के रिद्धि सिद्धि प्राप्ति कर लिया था, लोगों के अनेक प्रकार चमत्कार दिखाने लगे। आज समझिए नहीं, लोगों के इतना चमत्कार दिखाने लगे, लोग उसके समझे स्वयं भगवान। यहाँ तक भी नहीं, वो इतना शक्तिशाली था। उस समय भारतवर्ष में ब्रिटिश गवर्नमेंट था, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट है कि वो भी चुनौती दिया, चुनौती समझते हो, ललकारा है, ये मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं नारायण हूँ, मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के मैं सब खत्म कर दूंगा, मार डालूंगा सब। मैं सुदर्शन चक्र के द्वारा जितने भी वो है, क्या बोले, अंग्रेज लोग है, सब अंग्रेज लोग को मैं ध्वंस कर दूंगा। देखो वो इतना डिक्लेयर करने, दूसरी की बात छोड़ दीजिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको भी चुनौती दिया, मैं संग सुदर्शन चक्र धारण करके जितने भी वो है, क्या बोले, ब्रिटिश सैन्य है, मैं अकेला ही सबको मैं मार दूंगा। जैसे कृष्ण कुरुक्षेत्र युद्ध में सारे सैन्यों के क्या कर दिया, मार दिया। एक्चुअल युद्ध तो हो रहा था कौरव पांडव में, वास्तव मारा किसने जानते हो, कृष्ण की सुदर्शन चक्र, जो दिव्य महापुरुष जो है तो देखा क्या, ये स्वयं सुदर्शन चक्र जो है जाकर के उन लोग के सब काटा। कुरुक्षेत्र युद्ध में ऊपर से तो मानो एक दूसरे का युद्ध हो रहा है, तीर चला रहे हैं, किंतु कौन किसको मार रहे हैं, वही कृष्ण अकेला। कृष्ण की केवल सुदर्शन चक्र जो है बस सबको मार रहा है। तो उसी प्रकार विष किशन ऐसे महाजोगी था, वो भी स्वयं कहने लगे, मैं वही कृष्ण हूँ, मैं नारायण है, मैं भारतवर्ष से सारे मैंने क्या बोले ब्रिटिश राज को मैं खत्म कर देता हूँ, सारे ब्रिटिश सैन्यों को मैं अकेला मार देता हूँ, मेरे पास कुछ जरूरत नहीं, मेरे पास सुदर्शन चक्र है। देखो इतना वो करने लगे, यहाँ तक भी कहने लगे, मैं इस करने के पहले मैं रास करूँगा। वो रास करने के लिए पहले समस्त जो है सुंदर सुंदर लड़कियों को जो है बुलाया, और इतने महीनी शक्ति उसके पास था, वास्तव रूप में उनके पास इतने वो हो गया था, क्या बोले, मैजिक पावर था। जितने भी सुंदर सुंदर लड़के जो उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे, लोग हैरान हो गया, एक नहीं हजारों हजारों लिखे पड़े लोग भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। सब कहने लगे हाँ ये भगवान के अवतार है, आज समझिए भगवान के अवतार है। आजकल इंडिया में तो ऐसे बहुत है, अब सब के हाथ जेल में सब पड़ा हुआ है, सब भगवान सब कहे, आज इंडिया के जेल में सब पड़ा हुआ है, जेल से निकल नहीं पा रहे, पागल। जैसे उसके क्या नाम आता है, अरे सिक्खा जो है
सिख मैंने पंजाबी था वो, मैं इसका नाम का भूल गया अभी तक, वो भी ऐसी ही था है। उसके सारी गवर्नमेंट उसके क्या कर दिया, जेल में ठूस दिया है। तो विष्णु किसान इतने ही कहने लगे। तो अब हम उस समय हमारे भक्ति विनोद ठाकुर, सप्तम गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर, उस समय ये था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उड़ीसा उड़ीसा की प्रदेश की वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। और स्वयं ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो ये था क्या बोला, वाइस चांसलर क्या बोलते हैं, वाइस चांसलर था। उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर को आदेश दिया कि इसके बारे में आप तदंत करिए, खोज लीजिए क्या बात है। अच्छा, तो भक्ति विनोद ठाकुर कुछ माने इसको लेकर के ट्रूप्स क्या बोलते हैं, लक्ष्य सैन्य आदि लेकर के ब्रिटिश जो है लेकर के उनके पास है। और उस समय वो नहीं घोषणा कर दिया विष्णु किशन जे मैं इस जंगल में कृष्ण के भांति मैं रास करूंगा। सारी लड़कियां सब एकत्रित हो गई, एक नहीं हजारों। देखो उसके पास इतनी शक्ति है, सारे जंगल में सारे लड़के एकत्रित हो गए आधी रात में। जैसे कृष्ण बंसी बजाया ना, वो भी उसी प्रकार ऐसे माया रचाया। उनके पास जो क्या बोलते हैं जादू मंत्र आदि के द्वारा सब। और भक्ति विनोद ठाकुर थोड़ा सा सैन्य लेकर के, आर्मी लेकर के डायरेक्ट वहीं पर पहुंच गए। और भक्ति विनोद ठाकुर साधारण व्यक्ति नहीं है, भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी है, राधा जी के नित्य खोज खास कम रखी। और भक्ति विनोद ठाकुर जाकर के क्या की, उसके जटा था, बड़ी बड़ी लंबाई जटा थी, इतना बड़ा बड़ा लंबा जटाएं होता है ना, क्या बोलते हैं डेडलॉक्स। और भक्ति विनोद ठाकुर जब गए, मैं क्या बताऊं, उन्होंने क्या कि वो भी क्या बोले जादू सृष्टि कर दिया भक्ति विनोद ठाकुर माने। और ऐसे सिर के घुमाया और उनके सारे जटाएं से आग की चिंगारियां, आप समझते, आग की चिंगारियां निकल वास्तव सकते रूप, फ्लेम्स ऑफ फायर, द फ्लेम्स ऑफ फायर, चिंगारियां किंतु भक्ति विनोद ठाकुर इतने था, भक्ति विनोद ठाकुर कुछ परवाह नहीं किया, बस गए उनको जटा को झपट से पकड़ लिया। भक्ति विनोद ठाकुर भी उसी प्रकार भी थे, हम लोग होते थे छाई हो जाए। और भक्ति विनोद ठाकुर गए और उनकी जटाओं को ऐसे पकड़ लिया और थप्पड़ मारा। देखो फिर क्या कि भक्ति विनोद ठाकुर उसके सारे जटाओं को जाए काट दिया, हम कर पाएंगे। भक्ति विनोद ठाकुर थे सिद्ध महापुरुष, देखो ऐसे ऐसे बड़े बड़े व्यक्ति के भक्ति विनोद ठाकुर के थी, उसकी जटाएं काट दी। और जब उसके जटाएं काट दिया ना, तो बिल्कुल वो निस्तेज हो गया, कंप्लीटली पोटेंशियलिस्ट हो गया। कहाँ राज करने वाले, कहाँ ब्रिटिश सरकार को काटने वाले, कहाँ सुदर्शन चक्र के सुदर्शन चक्र कहाँ चला गया पता ही नहीं। फिर भक्ति विनोद ठाकुर उसको क्या की, जेल में फंस, जेल में रखा। उसमें वर्णन है उसको जेल में जाए 40 दिन जेल में रखा था, और फिर अंतिम दिन भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं राय देने जा रहे थे, बोले वो भी जेल में रह करके तब भी अपने मंत्र का प्रयोग किया। भक्ति विनोद ठाकुर सारे परिवार की इतना वो तंग करने लगे मंत्र तंत्र के द्वारा। उनके बेटा के पत्नी को पेट में दर्द होने लगे, ना जाने क्या क्या करने लगे, मंत्र की तरह करने लगे। उस समय भक्ति विनोद ठाकुर के पत्नी का इसको छोड़ दो, बोले नहीं इसको दंड मैं दूंगा। फिर भक्ति विनोद ठाकुर उसको दंड दिया, इसके आजीवन कारावास दे दिया। और फिर उसी कार में मैंने जेल में धकेल को शरीर छोड़ दिया, मर गया। तो कहने की तात्पर्य है कुछ लोग साधारण तंत्र मंत्र के रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, और रिद्धि सिद्धि प्राप्त करके लोगों के वो दिखाते हैं, जादू दिखाते हैं, और लोग उसके क्या मानते हैं, भगवान मान लेते हैं। मूर्ख लोग जो है
उसके भगवान मानती है। ऐसे मेरे कहने की तात्पर्य है कौन भगवान कब आएंगे इसके लिए भी शास्त्र में लिखा गया, भागवत में, वेद में, पुराण में लिखा गया ये कृष्ण कब आएंगे, रामचंद्र कब आएंगे, नृसिंहदेव कब प्रकट होंगे। जरा आपके कहने से नहीं प्रकट हो जाएंगे आपका, वो सब विधि के अनुसार भागवत में सब विधान है कौन भगवान कब होंगे। यहाँ तक भी नहीं, देखो ये हमारी काल मैंने ब्रह्मा जी के बारे में बताया था ना, कल तो बताया था। ये ब्रह्मा कौन बनेगा, जो सृष्टि करेगा ब्रह्मा जी, वो भी लिखा है। जैसे व्यास जो भागवत कौन लिखेगा, कौन सा युग में कौन लिखेगा, ये भी सब वर्णन है। जैसे तैसे व्यक्ति वो व्यास नहीं बन जाएगा, व्यास गद्दी पर नहीं बैठ जाएगा, उसमें सब लिखा है। ये वोट नहीं है ये आपको मैं वोट दे दिया आप मंत्री बन गया कि क्या बोलते थे, प्रेसिडेंट बन गया और प्राइम मिनिस्टर बन गया और ये बन गया, फिर 2 साल के बाद आपको मैं नीचे उतार देता हूँ। ऐसे नहीं है, भागवत में ऐसे वर्णन है, सीक्वेंस है। जैसे मैं बताता हूँ अभी भागवत किसने लिखा है, वेदव्यास ने भागवत लिखा, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने भागवत लिखा। चलो द्वापर युग है, इसके जो द्वापर युग, फिर दूसरी जो द्वापर युग आएगा उसके ये कौन होगा, भागवत कौन लिखेगा, व्यास बनेगा। वो व्यास कौन बनेगा जानते हो, भविष्य पुराण में लिखा है, वो होगा क्या, अभिमन्यु। द्रोणाचार्य के पुत्र, द्रोणाचार्य के पुत्र क्या नाम है, अभिमन्यु। अश्वत्थामा। ये पागल है, जाते चुपचाप बैठे रहो, अच्छा करने मूर्खता ज्यादा खराब होगा। नहीं तो मुझे चिंता करने दो, अभी उल्टा सीधा बोलो तो तुम्हारे मूर्खता ज्यादा प्रकाश होगा। पंडित व्यक्ति उतना कम बोलता है और मूर्खा ज्यादा बोलता है तो उसके मूर्खता जो है प्रकाश हो जाता है। अभिमन्यु तो इसके बेटा है, अर्जुन के बेटा, द्रोणाचार्य के बेटा जो अश्वत्थामा जो है। फिर दूसरी जो है आएगा जो द्वापर युग में जो भागवत प्रकाश होगी, भागवत जो लिखने वाले हैं वो ये अश्वत्थामा। क्योंकि मेरे कहने के तात्पर्य है ये अवतार, जैसे मनवंतर अवतार, जुगा अवतार, मनवंतर अवतार, सप्तावेश अवतार, लीला अवतार, ये 6 प्रकार के अवतार उसमें वर्णन है। भागवत पढ़ो, भागवत नहीं पढ़ सकते हो, भागवत में पढ़ करके उससे ढूंढना बहुत कठिन हो जाएगा, बात सकते है। किंतु देखो चैतन्य चरितामृत में पढ़ लो, बात सनातन शिक्षा पढ़ लो, उसमें हमारे सनातन शिक्षा में श्री कृष्णदास के विराज बहुत सुंदर रूप में, सरल रूप में वर्णन कर दिया, ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। कौन अवतार कब आएंगे, क्या होगा, उसके लिए सब लिखा है। जो भगवान कब आएगा, जिसको कहते हैं अब भगवान है, मरने वाला है और उसके घर है भगवान है। समझ में भगवान किसको कहा जाता है ये भी तो समझो। जिसको भगवान करने से थोड़ी होता है, भगवान किसको कहा जाता है बताओ। पहले भगवान उसके कोटुम अकोटुम अनथा कोटुम जो समर्थ स भगवान इति वाच्य। भगवान किसको कहता है, भगवान की साधारण डेफिनेशन उसको सुनो, कोटुम अकोटुम अनथा कोटुम जो समर्थ स भगवान इति वाच्य। जो होने वाला नहीं है उसको ठीक करा देता है, जो बिगड़ने वाला है उसको ठीक करता है, और जो बिगड़ने वाला है उसको वो ठीक करता है, उसको भगवान कहा जाता है। साधारण भगवान शब्द की अर्थ यही है, साधारण अर्थ यही है, कोटुम अकोटुम अन्यथा कोटुम जो समर्थ स भगवान इति वाच्य। भगवान जो भगवान शब्द की अर्थ और क्या होता है, जिसके बाण शब्द के जिसमें 6 प्रकार के गुण है, जिसको हम भगवान नहीं कर सकते। भगवान किसको कहा जाए, जिसके 6 गुण होगा। 6 गुण क्या क्या, ऐश्वर्य समग्र निर्जय ज्ञान वैराग्य सन्न भव इति गणा। देखो
भगवान उसके कहे जिसके 6 गुण होगा, 6 क्वालिफिकेशन, तब यदि हो उसके भगवान माना जाएगा। ऐश्वर्य उसके अथा ऐश्वर्य धन होता है, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के जो मालिक उसके होता है वो भगवान का ऐश्वर्य। वीर्य वो बहुत प्रभावशाली है, शक्तिशाली है, ब्रह्मा आदि शिव आदि देवता के भी वो कंट्रोल करने वाला है। ऐश्वर्य वीर्य जश, जश में जिसकी ख्याति, नेम फेम एंड रिपुटेशन सर्वत्र फैला हुआ है, जय जयकार सब करते हैं। ऐश्वर्य जो जश और श्री ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान जो होगा बोले ये स्वरूप लक्षण है, स्वरूप लक्षण जिसी का स्वरूप लक्षण है इंट्रिंसिक नेचर है, जिसका मुख्य प्रिंसिपल नेचर भगवान जिसको कहेंगे, भगवान की जो है ना ये स्वरूप लक्षण है। क्या है, क्या बताए? श्री श्री, श्री माने सुंदरता। भगवान जो कभी बुरे नहीं होगा, वृद्ध नहीं होता, नवयौवनंच, वो सदा सर्वदा युवा जैसे बना रहेगा, उसके दाढ़ी गोप नहीं होगा, दांत नहीं निकलेगा, दांत भी नहीं निकलेगा, आंख धसेगा नहीं, आंख अंदर में चले नहीं जाएगा। हम लोग बुरे हो जाते हैं, आंख चला जाता है कि नहीं चलता? एक दिन उपवास करने से हमारे आंख क्या हो जाता है, अंदर चला जाता है। और एक बार तो पेचिस हो जाए ना, पेचिस समझते हो, डायरिया, हिंदी में पेचिस कहते हैं, डायरिया हो जाए ना तो आंख बिल्कुल आपके चला जाएगा, अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। आपके रसगुल्ला रूपी जो गैसिक्स जो है वो सब रस निकाल जाएगा, है कि नहीं है? वास्तव में सत्य कहती नहीं है। किंतु भगवान जो होता है, भगवान की ऐसा नहीं होता, नित्य नव यौवनंच अद्वैतम अच्युतो अनादि अनंत रूपम वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्त नवयौवन, उसमें श्लोक है नवयौवनंच, वो सदा सर्वदा एवर फ्रेश ब्यूटीफुल फॉर्म। इसको समझो, जो भगवान होते हैं, भगवान होंगे उसे क्या, एवर फ्रेश ब्यूटीफुल फॉर्म एंड सो मच इफल्जेंस कमिंग फ्रॉम हिज बॉडी है। आज समझ लीजिए, हमारे कोई बीमार हो जाए, हमारे सारे चमड़ा क्या हो जाएगा, सब ढीला हो जाएगा, है? आज समझो नहीं, ये चमड़ा सब ऐसे झुलस जाएगा, है? अभी थोड़ा टाइट है, और जब बुढ़ापा हो जाएगा ना, सब ये कैसे हो गया, सब झुरी हो गया, झुरी मैंने है वो सब ये क्या पड़ जाता है, रिंकल आ जाता है। अभी आप अपने मुंह के देखो कितना सुंदर दिख रही है, और जब बूढ़ा हो जाएगा, बूढ़ी हो जाएगा ना, सब ऐसे ऐसे है तो कि नहीं है? हाँ भाई सत्य। किंतु भगवान ऐसे नहीं, वो नित्य यौवनंचम सदा सर्वदा युवक बना। रामचंद्र की कोई बुढ़ा फोटो देखा फिर तो हो गया है, कृष्ण के फोटो को भी देखा, आज से कितने करोड़ साल पहले भगवान रामचंद्र आए है। तो जो भगवान ये जो मैं जो कह रहा था, ये जो भगवान होंगे उसके स्वरूप लक्षण ये बता रहे हैं। क्या? वो सदा सर्वदा सुंदरता बने रहे है। इसका तो श्री ऐश्वर्य वीर्य जस श्री, श्री बताया ना, माने सुंदरता, ऐश्वर्य जस श्री। और ज्ञान, ज्ञान क्या है? नॉलेज, समस्त प्रकार के नॉलेज उसमें है। और यहाँ तक भी सर्व भाषा भी, सबके भाषा जाने वाले, ही नोज ऑल द लैंग्वेज ऑफ द लिविंग एंटिटी। समस्त प्राणी सभी के भाषा जानते हैं। आप कितने भाषा जानते हो? अब लैंग्वेज यू नो, 1-2 लैंग्वेज जानते हो कि 5-7 लैंग्वेज जानते हो? किंतु भगवान सर्व भाषा भी, समस्त भाषा भी जानते हैं। ये चिट्ठियों की भाषा भी जानते हैं। कहा रामचंद्र की कथा कहा ना, वो कुत्ता आ गया, कुत्ता आ गया रामचंद्र के दरबार में। लक्ष्मण के बोले ये कुत्ता के पूछो है ये क्या चाहते? तो लक्ष्मण जाकर के बोले, कुत्ते के बोले आप क्या चाहते? बोले मैं रामचंद्र के पास आया हूँ नए विचार के लिए। भगवान रामचंद्र से बुलाया है। हम कुत्ते की भाषा नहीं जानते, किंतु भगवान रामचंद्र कुत्ते की भाषा जानते। कुत्ते ने कहा तुम्हारे पुजारी मुझे क्यों लात क्यों मारा क्यों? ये विचार मुझे
तो मेरे कहने की तात्पर्य है भगवान जो होते सर्वभाषावीद है, देखो कैसे वैसे जैसा श्री ज्ञान समस्त ज्ञान है, अनंत ज्ञान के आधार है। हम एक श्लोक आज पढ़ लेते हैं, दूसरी समय वो भूल जाता है। गीता के एक श्लोक पढ़ लो, दूसरे दिन पूछा जाए आधा श्लोक याद है और आधा श्लोक भूल गए, वो इसका अर्थ भी नहीं। और उसके अर्थ भी कहाँ के अर्थ कहाँ लगा देते हैं। किंतु भगवान ऐसे नहीं है, भगवान सर्वभाषा भी वैसे जैसे ज्ञान और वैराग्य, वैराग्य किसको कहा जाता है? गिटाज है। आज समझ सब कुछ करते हुए पर भी और किसी में कुछ नहीं रहा है। आज समझ में गीता में भगवान भी कहते हैं मैं सब में होते हुए पर भी किसी में भी नहीं रहता है। जैसे तेल समझते हो, ऑयल जल में रहते हुए भी जल के स्पर्श नहीं करता है। अथवा कमल के पुष्प जो है, फूल जो है जल में रहते हुए जल के स्पर्श नहीं करते। उसी प्रकार भगवान इस संसार में रहते हुए पर भी माया के बिल्कुल उसके स्पर्श नहीं करते। हरि निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति परः। भगवान श्री हरि लीला करने के लिए नित्य गोलोक वृंदावन धाम से जगत में आते हैं, किंतु इस जगत की कोई वस्तु को उसको स्पर्श नहीं होता। हम तो इस संसार में देख थोड़े से कुछ हम इसमें लतपथ हो जाते, मिल जाते, गोलपल हो। भगवान सब में रहते हुए भी किसी में नहीं रहता है। सब में, इसलिए गीता में भगवान कहते हैं मैं सब में रहते हुए पर भी किसी में भी मैं नहीं रहता हूँ। एक गुरु एक छोटा चुटकी सुनाता हूँ, कहानी सुनाता हूँ। एक गुरु शिष्य के घर में आ गए। वो गुरु था बहुत चटपटे खाने वाले। चटपटे खाने वाले जानते हो क्या है? टेस्टी, टेस्टी है, स्पाइसी, इधर स्पाइसी वो चीज है, लड्डू कचौड़ी, और इधर उधर खाने बहुत लोग के शौक होता है खाने का शौक, खाने के बहुत लोग के शौक होता है, हैबिट होता है इधर उधर का वस्तु खाने के लिए। तो गुरु चटपटे खाने वाले गुरु था, शिष्य के घर में आ गए। वो नया नया शिष्य बना, अभी भी मानो गुरु से दीक्षा मंत्र आदि लिया। तो गुरु कैसे कहे अभी नया शिष्य है कि हमारे लिए ये बनाओ वो बनाओ है। तो शिष्य कहेंगे अरे गुरु खाने के गुरु है कि ऐसे गुरु है, ये साधु है कि साधु है। एक साधु होता है और एक स्वादु होता है। तो इसलिए गुरु कुछ ऊपर से कुछ कहने लगे, अच्छा सुन मैं एक बता, ए शिष्य इधर आ जाओ। बोले हाँ जी गुरुदेव। अच्छा मेरे लिए कुछ खाना पाना बनाया कि नहीं? हाँ गुरुदेव आप जो आदेश करो। आप बता। शिष्य कहने लगे गुरुदेव आप बताओ आप क्या खाना चाहते हो? गुरुदेव चटपटे खाने वाले थे, मैंने बताया ना, मिर्च का सब्जी और क्या बोले चटनी, वो ये वो चटपटी खाने वाले गुरु था वो। गुरु कैसे बोले? गुरु क्या बोले? देख शिष्य के बोले, नया नया शिष्य है ना, बोले एक काम कर मेरे लिए कुछ हल्का चीज बना दे। क्या बना? हल्का समझते हो मतलब लाइट। शिष्य तो चिंता करने लगा, अभी नया नया शिष्य है, गुरु के भाव नहीं जानते हैं, गुरु क्या खाना चाहते हैं। तो कहने लगे गुरुदेव बताओ हल्का क्या बनाऊं? गुरु कहने लगे हल्का करके बनाओ, हल्का 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 माने लाइट। अच्छा शिष्य तो विचार करने लगे गुरुदेव हमने सुना ये किसी के बीमार हो जाता है ना उसके इंडिया में क्या खिलाते हैं जानते हो? खिचड़ी खिलाया जाता है। जैसे किसी के पेट की बीमारी हो, बुखार हो जाता है, इंडिया में उसको क्या खिलाया जाता है? हल्का उसके खिचड़ी बनाया जाता है। खिचड़ी उसका हल्का कहा जाता है। तो कहने लगे ये गुरुदेव आपके लिए खिचड़ी बना दूं? खिचड़ी कोई खाता है? मैं थोड़ी पेट के बीमारी थोड़ी हूँ। अच्छा बताओ गुरुदेव हल्का क्या? तो शिष्य विचार करने लगे गुरुदेव हल्का तो यही है, पानी है, तो पानी उबाल करके आपके पिलाऊं? अच्छा पानी हल्का है कि नहीं? गुरुदेव बोले अरे नहीं
अच्छा बताओ, पानी से हल्का कोई वस्तु है? शिष्य विचार करने लगे, पानी से हल्का कौन है? पर मेरे गुरुदेव, मेरा समझ में नहीं आ रहे, आप बताइए। तो गुरु कहने लगे, अरे अच्छा बताओ, हल्का वस्तु क्या होता है? वो तरता है। अच्छा बताओ, पानी से हल्का क्या है जो पानी के ऊपर तरता है? वो तो तरता है ना, है? तो उसके तो हल्का कहा जाता है। हल्का वस्तु तो पानी के ऊपर। ये पानी से हल्का क्या है? शिष्य कहने लगे, पानी से हल्का क्या है? तेल है। तेल पानी के ऊपर हल्का है? हाँ, तो गुरुदेव आपसे क्या तेल पिलाऊं? अरे नहीं, तेल पिलाओ तो मेरा पेट खराब हो जाएगा। गुरु कहने, अच्छा बताओ, तेल से भी हल्का कोई है? शिष्य विचार करेंगे, तेल से हल्का क्या है? तेल के ऊपर कौन करता है? शिष्य कहने, अच्छा बताओ, पकौड़ा बनाते हो कि नहीं बनाते हो? अच्छा, तेल के ऊपर क्या होता है? पकौड़ा क्या होता है? समोसा। समोसा, जिलेबी ये बनाते हैं ना, बोले तेल के ऊपर जो तरता है, माने ये बनाओ, जिलेबी बनाओ। जिलेबी बनाया आपने? तेल के ऊपर है, पकौड़ा बनाओ। अरे यही तो मैं के बात कर रही हूँ। मेरे हल्का बना दिया। मेरे कहने की तात्पर्य है, भाई देखो, कौन भगवान होंगे, कब आएंगे, ये सब जो मैंने कहा ना, अवतार आदि लिखा है, लीलावतार, युगावतार, मन्वंतर अवतार, ये सब अवतार कौन युग में, यहाँ तक भी स्वयं भगवान कब आएंगे, ये सब वर्णन है। हम जिसको तिसको कह करके भगवान है, और उसको लोग पीछे दौड़ता रहता है। ये मूर्खता है। जो लोग भागवत ग्रंथ अध्ययन नहीं करते हैं, सत्संग में नहीं जाते हैं, और जिसको तिसको भगवान कर उसके पीछे दौड़ता रहता है। इसे समझना चाहिए। इसलिए कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ बना। जब तक हम सत्संग में नहीं बैठेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, सत्संग नहीं सुनेंगे, हम जिसको भगवान मानेंगे और उसके पीछे दौड़ेंगे, और अंत में जाकर के सब नष्ट हो जाए। भजन संग बहुत दूर की बात है, अपने सत्ता बेकार है। इसलिए आजकल देखो, इंडिया में कितने भगवान होने वाले था, सब जेल में पड़ा हुआ है। गवर्नमेंट सरकार, इंडिया सरकार, सब जो बड़े भगवान था ना, सबको जेल में डाल दिया, सब पड़ा हुआ है, जेल से अभी निकल नहीं पा रहा है। सबके ऊपर इतने केस दायर हो गया, ये पता नहीं क्या क्या केस है, सब जेल में पड़ा हुआ है, जेल से निकाल नहीं पा रहे हैं। और कृष्ण भगवान जेल से बाहर आ गए, आज समझ में, और वो जेल में पड़ा हुआ है। तो भगवान, जिसको भगवान करना नहीं चाहिए। भगवान कौन है? बोले वही भगवान जिसमें 6 गुण हो, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, सेवा, भगवती। इसलिए जीव कभी भगवान नहीं बन सकता, उसको आप ठीक कर सकते हैं। आप कभी भगवान नहीं बन सकते हैं। क्यों? जीव है, अंश है, पार्ट है। ये पार्ट में नेवर इक्वल द होल। मैथमेटिक्स के ज्योमेट्री के अनुसार, ज्योमेट्री पढ़ते कि नहीं पढ़ते? ज्योमेट्री में क्या लिखा है? एक अंश कभी बृहद के बराबर नहीं हो सकता है। एक अंश जो है बृहद के पार्ट कहा जाता है, अंश कहा जाता है। ये पार्ट भी नेवर इक्वल द होल। भगवान बृहद है और हम जीव है, जीव होने के हम अंश है। इसलिए रामचरित मानस में तुलसीदास भी लिख रहे हैं, क्या लिखा? जीव अंश अविनाशी और सर्व सुखनाशी। जीव को अंश कहा गया, गीता में भी कहा गया। गीता में क्या कहा? जीव में क्या कहा? पढ़ो श्लोक, गीता पढ़ो। मामई वांसो जीव लोके जीवभूत सनातन। इतना याद करो, एक लाइन याद कर लो, बात दूसरी लाइन की जरूरत नहीं। एक लाइन ही, मामई वांसो जीव लोके जीवभूत सनातन। भगवान कहते हैं ये सारे जीव मेरा अंश है। मामई वांसो जीव लोके, और वो जीव क्या है? मामई वांसो जीवभूत सनातन। सनातन से इटर्नल ट्रांसफर, जिससे परिवर्तन नहीं हो सकता है।
हाँ सुनिए, आत्मा के परिवर्तन नहीं होता है, आत्मा नित्य शाश्वत से, भगवान नित्य शाश्वत है, आत्मा भी वही उसी प्रकार है, किंतु वो अंश है, वही आत्मा हमारे शरीर में विराजमान है, इस समय शरीर काम करते जाए, हम कभी भगवान नहीं बन सकते। अद्वैतवादी मायावादी लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्म, आई एम भगवान, तो भगवान हो तो थोड़ा आग पी करके दिखाओ, समझ में नहीं, आप भगवान नहीं बन सकते। गिरिराज गोवर्धन के किसने उठाया? कृष्ण, कृष्ण ने उठाया, भगवान उठाया। गिरिराज धार्मिक भागवत में है कि नहीं, पढ़ते कि नहीं, सुना है कि नहीं? आप उठाओ 5 किलो वजन का उठा नहीं सकते, 10 किलो वजन है ना, आपके हाथ में दर्द हो जाता है। और भगवान 7 दिन 7 रात बाएं हाथ में छोटी उंगली पर इतने विशाल गिरिराज गोवर्धन के धारण किया। भगवान ने क्या की? सांप के वो क्या बोलते हैं, सिर पर सब उनके ऊपर, उसके ऊपर उन्होंने क्या की? नित्य किया। आप तो सांप देखने से डर के बच जाओगे, मरा हुआ सांप भी पड़ा रहे तो आप भी डर हो जाएगा, हो जाए कि जिंदा ना हो जाए फिर मुझे रास्ता में एक अभी मरा हुआ सांप को देखोगे ना, आप भी देखोगे ये जिंदा है कि नहीं है, कहीं मुझे काट ना दे। मरा हुआ सांप को देखते ही आपको भय उत्पन्न हो जाएगा, उसे पैर रखना तो बहुत दूर की बात है, तो जो मरा हुआ सांप को देखने भी आपके भय उत्पन्न होता है, जेर ना हो। और भगवान ने क्या की? वो कालिया नाग था, जिसके हजारों जो है फन था, फन समझते हो? कालिया नाग के फन के ऊपर भगवान ने क्या की? नृत्य किया, डांस किया, डम 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 नृत्य करने लगे। देखो भगवान, भगवान कृष्ण ने दावानल को पान कर लिया, दावानल समझो, आग को पान कर लिया। एक बार स्वयं भगवान कृष्ण भांडीर गढ़ में गोचारण कर रही थी, और दोपहर के समय सखाओं के साथ भोजन करने के लिए बैठे पेड़ के नीचे, सारे भोजन करने के लिए बैठे, और गाय भी इधर उधर घास खा, और इतने समय कंस के अनुचर उधर आ गया, कंस दुष्ट कंस के अनुचर आ गया, और उस समय वहाँ पर जो है वो था क्या बोले, सूखी घास टाइप का ऐसे था, जिसको मुंजा उडोगी कहा जाता है। मुंजा उडोगी जानते हो? एक प्रकार घास होता है, गर्मी के समय वो बिल्कुल सूख जाता है, सफेद हो जाता है, और वो आकर के क्या की? उसी में आग लगा दी, और देखते देखते आग के लहरियां जो है चारी तरफ फैल गया, धुधु करके आग की जो है लहरियां, सब सखा लोग डर गए, चारी तरफ कृष्ण सखा गाय सब एक साथ में है, और चारी तरफ क्या हो गया? आग लग, वो मुंजा आटो भी कहा ना, इतना बड़ा बड़े घास होता है, जब गर्मी के समय बिल्कुल वो सूख जाता है, और उसमें आग लगने से आग की हवा से जल्दी ही क्या होता है? फैल जाता, और आग की इतनी लहरियां आ जाती, लहरियां, देखो सबसे आप बचने के प्रयास कर सको, किंतु आग से बच नहीं पाओ, पानी में गिर जा तैर करके आ जाओगे, आज समझो। किंतु आग यदि चारी तरफ है, कहाँ आप क्या करोगे? बचने का उपाय है कुछ? क्या करोगे? आपके पास कुछ है? आपके पास थोड़ी गैस है, क्या गैस है? फायर एक्सटिंग्विशर। वो तो गैस है ही नहीं है, तो क्या करोगे? तो उसी प्रकार सारे सखा लोग देखा आग के लहरियां जो है ऐसे लपट लपक करके आ रही हैं, और बहुत तेज गति से चारी तरफ आग की जो गति है, लहरियां जल्दी जल्दी आ रही, सखा लोग डरने लगे, और सब सखाओं कृष्ण के कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महाभाव, हे कृष्ण हमें तू रक्षा करो, क्योंकि सखाओं ये था विचार था ये कृष्ण कुछ तंत्र मंत्र जानते होंगे, आग की लहरी को स्तंभित कर देंगे, इसलिए सारे सखा कहने लगे कृष्ण कृष्ण मुझे रक्षा करो, तो कृष्ण विचार करने लगे क्या करूं अभी, इनके सामने मैं आपको पी लूं
तो ये लोग जा करके मेरे माँ जसोदा के निकट शिकायत कर देंगे, है? फिर और दूसरी लीला शुरू हो जाएगा, है? इसलिए भगवान कृष्ण ने क्या की, सारे सखाओं के बोले देखो तुम लोग सब आंख बंद करो, है? सारे सखा लोग आंख बंद किया, है? और कृष्ण ने क्या की, सारे आग कृष्ण के मुंह के अंदर से इसको कहा जाता है दावानल भक्षण लीला। भागवत में वर्णन है कि नहीं, पढ़ा आपने? पढ़ना, दावानल भक्षण लीला, है? कृष्ण ही ड्रैंक द फायर। यदि आप भगवान जिसको जो उसका कहते हो, अच्छा थोड़ा सिगरेट और बीड़ी के जो आग है ना तुम्हारे मुंह में लगा देगा, वो बन जाएगा, है? आया समझ में? भगवान नहीं हो सकता, किंतु भगवान ने क्या कि सारे आग को पी। इसलिए जिसको भगवान कहना ये अपराध भी है, अपने के भगवान मानना और दूसरे के भगवान कहना ये दोनों ही क्या है? अपराध ही, ऑफेंस। जिसको भगवान एक ही भगवान है, कृष्ण भगवान का बस, है? जिसको भगवान नहीं कहा नहीं जाता, इसलिए भागवत में स्पष्टीकरण कर दिया, एक कला कृष्णस्तु इसको समझना चाहिए। इसलिए बिनु जब हम साधु संग नहीं करेंगे, जहाँ तक आप कथा सुन करके आ जाएंगे, हल्लू चक्कू लाकू बाकू के पास जा तो कहेंगे वही भगवान है, इसलिए नहीं। इसलिए कहते हैं भागवत किससे सुनना चाहिए? भक्त से सुनो, वैष्णव से सुनो, अभक्त से नहीं, है? जहाँ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण, वैष्णव के निकट भागवत पढ़ो, अवैष्णव के निकट नहीं, है? अवैष्णव मुखोदगिन्नम कुतो हरिकथामृतम श्रवणं नैव कर्तव्यम सर्वोच्छिष्टो यथा पयो, है? अवैष्णव के मुख से भागवत कथा सुनना नहीं चाहिए, वैष्णव के इस प्रकार दूध पीने से शरीर में क्या होता है? ताकत होता है? और वही दूध मिल्क यदि सांप के मुंह के द्वारा प्रसिद्ध हो जाए तो कंटेमिनेट हो जाएगा, विष फैल जाएगा, और उस दूध के पीने से क्या हो जाएगा? आप मर जाओगे। ठीक उसी प्रकार भागवत कथा तो अमृत है, किंतु अवैष्णव के मुख से श्रवण करने से, सुनने से आपके क्या होगा? हानि होगा, क्षति होगा, लाभ नहीं होगा। इसलिए भागवत किससे सुनना चाहिए? वैष्णव से नहीं, है? इसलिए फिर आपके प्रश्न होगा वैष्णव कौन है, अवैष्णव कौन है? सभी कहेंगे हम वैष्णव है, कोई कहेगा मैं अवैष्णव हूँ। जो भागवत पाठ करता है वो स्वयं कहेंगे हम वैष्णव, बोले नहीं। इसलिए कहता है वैष्णव के लक्षण क्या है और वैष्णव के लक्षण क्या है? What is the symptom of Vaishnava और what is symptom of अवैष्णव? इसकी भी जानना चाहिए, काल बताएंगे। जहाँ तहाँ भागवत सुनना नहीं चाहिए, आज समझ देखो, जहाँ तहाँ पानी पियोगे तुम्हारे बीमार फैल जाएगा, नहीं फैल जाएगा? प्यास तो तुम्हें लगा है, यह प्यास लग गया, इसका मतलब नहीं है तुम नाली के क्या बोले गटर वाटर पियो, तो वो भी तो पानी है। नाली समझते हो, जो ड्रेन है, स्विच है, तो स्विच के पानी पीने से आप क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, मर जाओगे। तो वो तो पानी है, स्विच के जो नाली के जो पानी है, गंदी पानी है ना, बोले वो तो पानी है। बोले अरे नहीं है, पानी पीना है, कैसे पानी पीनो? अच्छा पानी। इसलिए कहा जाता है पानी पियो जान के और गुरु करो जान के। ना क्या होता है ना, गुरु करो जान के, पानी पियो छान के, हैं? छान के समझते हो नहीं? देखो उस पानी में यदि कहीं धूल पड़ा हुआ है, तृण करना पड़ा हुआ है, तृण समझो, घास पड़ा हुआ है, तो उसको क्या करना चाहिए? साफ करना। जैसे कहता है, इसलिए लिखा है पानी पियो तो कैसे पानी पियो? अच्छा पानी, शुद्ध पानी पीना चाहिए, शुद्ध जल है, प्योर बिस्लरी वाटर पानी पियो। और नहीं जहाँ तहाँ पानी पी लिया अब बीमार हो जाए,
बैक्टीरिया है ना, जहाँ नाली के पानी पी लिया तो गैस है, सीधी आप चले जाओगे, गोलोक वृंदावन चले जाओगे, मजा आएगा। इसलिए भागवत कथा भी सुनने के लिए कहा गया, वैष्णव से भागवत कथा सुनो और वैष्णव से मत सुनो। जहाँ तक कथा तो है, बोले हरि कथा तो अच्छा है? किंतु हरि कथा उससे सुनो है जो गुरु वैष्णव की सेवा किया। जिस लोग ने गुरु वैष्णव की सेवा किया, गुरु वैष्णव के चरण में अपने समर्पित किया, उससे हरि कथा। जो जिन लोगों ने गुरु वैष्णव की सेवा नहीं किया, गुरु से दीक्षा मंत्र आदि नहीं लिया, उससे भी सुनने के लिए माना कहा है। अवैष्णवो बोधकृष्ण उत हरि कथा अमृतम श्रवणं नैव कर्तव्यं सर्वोच्छिष्टे विधातयो। समझ में? समझ में। महाराज एक प्रश्न था, धर्म भगवान वर्णाश्रम धर्म स्थापित करने आए, तो अलग अलग धर्म क्या होता है और दूसरे धर्म क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ धर्म अरे कई प्रकार के, जैसे धर्म के बारे में जैसे होता है नित्य धर्म, नैमित्तिक धर्म, अनेक प्रकार के धर्म, काम धर्म, अकाम धर्म, धर्म के बारे में अनेकों डेफिनेशन है, अनेक प्रकार के। एक कितने जैसे कि निष्काम कर्म है, निष्काम कर्म योग कहा गया ना, कर्म योग, निष्काम कर्म योग, सब अनेक प्रकार के कर्म है। लौकिक कर्म, व्यवहारिक कर्म है, आया समझ लीजिए। और भक्ति युक्त के भक्ति के साथ युक्त जो कर्म, कर्म योग। इसलिए गीता में क्या बोला होता है, ये कर्म के बारे में कहा गया, ये कर्म योग के बारे में कहा गया। धर्म और कर्म, धर्म कर्म अलग होता है। जैसे कि लोक धर्म, संसार धर्म, हम लोग के संसार में कितने प्रकार के धर्म कहा गया? अच्छा बताओ। एक होता है स्त्री धर्म, कहते ना, मनोधर्म, कितना धर्म है। एक्चुअली धर्म शब्द के अर्थ क्या है उसको भी समझना चाहिए। धर्म किसको कहते हैं? धातु के साथ मन प्रत्यय करने से धर्म होता है। धर्म शब्द को होता है धारण करना, टू होल्ड। संस्कृत जो वर्बल रूट कहाँ से, धृ धातु, धृ धातु के साथ धारण करना। अनेक प्रकार के धर्म है। जैसे बाल धर्म कहा गया, छोटा बालक की धर्म होता है, युवा धर्म कहा जाता है, कई प्रकार के धर्म कहा जाता है। लोक भाषा में कहते हैं लोक धर्म है, समाज धर्म, प्रजा धर्म है, प्रजा क्या, प्रजा के धर्म, राज धर्म है। धर्म के लिए अनेक शब्द के धर्म तो लगा दिया, किंतु धर्म की असली परिभाषा जो है उसको समझना चाहिए, है? तो इसको समझ। और यह पर जो कह रहे हैं भगवान कब आता है? जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि, जब असुर लोग धर्म के ग्लानि माने ये कर देते हैं, कुलसित कर देते हैं, ढंग से कर देते हैं, तब इसमें जो है इसलिए गीता में अंत में भगवान क्या करे? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ओम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। अनेक धर्म है, तुम सब धर्म के त्याग दे करके मेरे पास है। आज समझ लो। अच्छा, सबसे बड़ी धर्म कौन से खतरनाक है, हम छोड़ नहीं पाएंगे? समाज धर्म, मातृधर्म, पितृधर्म, पुत्र धर्म, संसार धर्म। इसको हम संसार धर्म हम मानते हैं। अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र इसके पालन पोषण करना हमारे धर्म है कि नहीं? शास्त्र में लिखा है माता पिता मृत्यु हो जाने से पुत्र कन्या के कर्तव्य क्या है? माता पिता को ध्यान रखना, माता पिता माता को सेवा करना है। ऐसा समझ में नहीं? ये हमारे पहले धर्म है कि नहीं? जिस माता पिता ने मुझे बचपन से लेकर के अभी तक पाला पोषण किया, और वही माता पिता जब वृद्ध हो जाएंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा? सेवा करना पड़ेगा। उनको माता पिता को सेवा करो, है? जो माता पिता की सेवा नहीं करता है, मृत्यु के पश्चात उसको कहाँ जाना पड़ता है? नरक में जाता है, और नरक में जाकर के उनकी शरीर के मांस उनको खाना पड़ता है। ऐसे शास्त्र में लिखा गया।
रामायण में ऐसी कथा है? जो लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है, मृत्यु के पश्चात वो ऐसे स्थान पर जाता है, अपने शरीर के मांस काट काट करके उसको खाना पड़ता है। ऐसे लिखा है। आप बताओ है? और इधर गीता में भगवान कर रहे हैं तुम सब छोड़ दो, लोक धर्म, संसार धर्म, मातृ धर्म, पितृ धर्म, जितने प्रकार के धर्म है इसमें कहते हैं सर्वधर्मन। धर्मन त्याग नहीं कहते, सब प्रकार के धर्म, जितने यह तो मनोधर्म, जो आपके जहाँ जितने प्रकार के धर्म है। गीता में अंतिम श्लोक में भगवान क्या ये श्लोक याद किया? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचि। जितने प्रकार के धर्म हो सकता है सब धर्म त्याग करके मेरे शरण में आ जाए। यहाँ तक शरीर धर्म, मनोधर्म, जितने प्रकार के धर्म है सब छोड़ो। इसी की तो शरणागति का है। यहाँ तक व्यवहारिक धर्म वो भी छोड़ो। व्यवहारिक धर्म समझते हो? जो हम संख्या में जो अपने जो व्यवहारिक कर रहे हैं, एक्सटर्नल एक्टिविटी जो हम करते हैं, ये भी सब कुछ छोड़ो। सब कुछ क्या है? और मनोशिक्षा में हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी और भी उसके और एक कदम बढ़ा दिया। न धर्मं नाधर्मं शुद्धिकरण नित्यं कीलो गुरु ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या मिहतनु। मुझे धर्म भी करना नहीं है और कर्म भी नहीं करना। न धर्म ना धर्म, वो धर्म कर्म सब छोड़ो। शिक्षा पढ़ा नाम सुना? मैंने शिक्षा पढ़ा? क्या श्लोक है? यही श्लोक है। न धर्मं ना धर्मं शुद्धिकरण नित्यं कीलो गुरु ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या। शास्त्र में जो धर्म के बारे में क्या? न धर्मं ना अधर्म, बोले धर्म भी करना नहीं है, अधर्म भी नहीं करना नहीं है। अच्छा धर्म तो करना नहीं है, बताओ अधर्म भी करना नहीं है। अधर्म मत करो, धर्म तो करो। बोले नहीं, कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना, कर्म कुछ नहीं करना, कुछ करना नहीं। न धर्मं ना अधर्मं शुद्धिकरण, जो श्रुति वेद में जो लिखा गया धर्म कर्म आदि के, जैसे मैंने कहा ये माता पिता को सेवा करना चाहिए है। आज यहाँ पर करें माता पिता की सेवा छोड़ दो, ये कैसे होगा? वेद विरुद्ध कथा होगी कि नहीं होगी? है गीता में भगवान इधर कह रहे हैं ये धर्म कर्म करो है, और फिर कह रहे नहीं कर्मण्य अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करने तुम्हारा अधिकार है। और अंत में जाकर क्या बोल रहे हैं? सब छोड़। ये कैसे होगा है? इसको भी सामंजस्य करना पड़ेगा। श्री भक्तिवेदांत बंधु महाराज की जय, श्री गुरुदेव की जय। जय बोलते रहे क्या है बोलते रहे? अश्वत्थामा की जय। अरे आप कैसे ठीक हो? Why not coming? You are working. Oh, every day night shift. What's your job?